हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे कि अफ्रीकन्स जो हैं वो कैसे देखते हैं मेड इन चाइना वर्सेस मेड इन इंडिया। अफ्रीकन्स देखते हैं, मतलब मुझे लग रहा है ये बताएंगे कि अगर कोई सामान मेड इन चाइना है और वही सामान बना हुआ एक मेड इन इंडिया, तो वो किसको चूज़ करते हैं, किसको प्रेफर करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे तो माना जाता है ना कि चाइना का माल जो है वो इतना घटिया होता है कि वो 2 दिन भी नहीं चलेगा, तीसरे दिन जाके वो खराब हो जाएगा। और ये तो मैंने यूएसए में भी देखा हुआ है। मैंने एक सेम चीज़ पहले भी शायद आपसे शेयर की होगी। मैंने एक चीज़ मंगवाई सोच के कि वो मेड इन यूएसए है, वो आ गई मेड इन चाइना। चाइना से आई है वो, मतलब वो शिप की गई थी चाइना से और बिल्कुल ओरिजिनल टाइप की बनी हुई। और उसको मैंने एक बारी भी यूज नहीं किया, बस ऑन किया और वो वहीं पे खराब, फिर उसको वापस भेजा। तो भैया मेड इन चाइना जो है ना 2 दिन भी नहीं टिकता और उसका काम खराब होता है। अब मुझे नहीं पता कि वो क्योंकि चाइना से आई थी इसलिए वो खराब थी, क्योंकि वहां से आई है। पर जो मेड इन चाइना यूएसए में आता है, पूरा चेक होके आता है, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर होती हो कि नहीं होती हो। दो टाइप की हैं। एक होता है कि कोई अमेरिकन कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग कर रही है चाइना में, वो उसकी क्वालिटी ठीक रहती है। अमेरिकन कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है चाइना में हाँ। वो अच्छी क्वालिटी की होगी। क्योंकि वो तो टेस्ट करके सब दूसरा बता है रहे हैं। वहाँ का लोकल बंदा जो अपनी बना के बेच रहा है, जो बहुत सस्ता होता है, वो सब कचरा होता है। वही को जो कॉपी करते रहते हैं ना, हर कंपनी का चोरी करके अपना उसकी तरह बनाना, तो वही था। वो बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही बनाया हुआ, यूएसए कंपनी को पूरा कॉपी करके वही बनाया हुआ, नाम तक वही दिया हुआ, डब्बा भी वही और फेक। उसके बाद कैसे पता चला? क्योंकि वो मेड इन चाइना लिखा हुआ था। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। As a Congolese, every time I read Made in China, my mind tells me this is fake. And when I see Made in India, it tells me this is original. But it's not only me. I think this have been so rampant everywhere that if I take the case of Africa, beauty or makeup product, hair product or medical product, as soon as it's shown Made in India, they trust it much more. But is this really true? So I use a bunch of Indian product. For example, this mouse by an Indian company, this keyboard, this alarm, these headphones, this watch, this note, the pen, literally everything around me which I use now is made in India. And to be honest, I'm quite satisfied with the quality at the price at which I get it. Man, how does that happen? How does it happen that Indians can make affordable stuff, but when Chinese make something affordable, it ends up being lower quality? Just look at this. China make good products also, which they end up selling parts to the US or any other country, which means they also know how to make good products. But when they make affordable product, the idea is this is going to be sold outside to people who cannot afford high quality things, and that makes us you have to make low quality things because they will be okay with them since they just need something for now. Yet on the other hand, Indians, when they make affordable stuff, they do not make them to sell them outside, they still make them for Indians in India, and that makes that they will make that affordable thing to gain another client, so they can't fool him by a low quality thing because they know he will go away. So they have to give you something affordable yet try as best as possible to give it to you on a good quality. That gap makes that made in India definitely will be made in India because they want to sell it to an Indian who needs assurance that I have to rely on this brand to buy from there next time. But when it's made in China, I probably don't even know the brand. I barely check brands of stuff which I buy from China. I just need the product, and the next thing which I know is probably it might not sustain to live for longer, so I will need to buy another one in the next 3 or 6 months, and that destroys the idea. But there is a possibility of buying a high quality also in China. Yet what interests me here is how Indians managed to go with the idea of making affordable things which can still be of good quality. And I've said about this in my other videos about how Indians literally captured the market of bikes of Africa by doing the same. They make affordable bikes but which are really strong, and they won the entire market of bikes in Africa. The same way they did with medicines. In the whole world today, India is the only plug when it comes to affordable medicine, because you are sure you get good medicines on an affordable price. We somehow will give you again the same expectations you had on a very expensive medicine, and that's a very intelligent strategy which Indians use. And I think to me that makes India to be a much more reliable partner for Africa. Yet
to be honest, China have saved a lot who couldn't afford the very expensive products. Anyways, thanks so much for being here. Catch you next time. भाई उन्होंने बताया व्यू पॉइंट ऑफ अफ्रीकन्स। वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने अभी दिखाया, पहले सारा सामान दिखाया जो सारा उनके पास मेड इन इंडिया था। उन्होंने बताया कि जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होता है वो अफोर्डेबल होता है, मतलब कम पैसे का होता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। जबकि चाइना का जो चीजें खरीदते हैं अगर वो सस्ती होती हैं तो वो क्वालिटी में भी गंदी होती हैं, चलती नहीं है। और उन्होंने ये भी एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बोला ना, उन्होंने भी ये एक्सपीरियंस किया। पर वो ये बोल रहे थे कि वो अच्छी क्वालिटी की भी चीजें बनाते हैं, पर वो दूसरी जो है ना कंट्रीज जैसे यूएसए, जैसे मैंने बोला था ना, उनके लिए बनाते हैं। तो वहां पे अच्छी क्वालिटी देते हैं, पर जहां पे लोग जो है महंगी चीजें थोड़ी नहीं ले सकते तो उनके लिए जब सस्ती बनानी होती है तो इनकी क्वालिटी भी घटिया हो जाती है। पर इंडिया क्या कोशिश करता है, वो सस्ती भी बनाने की कोशिश करता है और क्वालिटी भी अच्छी देने की ही कोशिश करता है। उनका ये एम होता है और वो वैसे ही काम करते हैं। इसलिए भैया हमें जो है, वो कह रहे थे अफ्रीकन्स को मेड इन इंडिया के साथ ज्यादा पार्टनरशिप करनी चाहिए क्योंकि उनका माल अच्छा होता है। और फिर उसके बाद उन्होंने मेडिसिन के बारे में बताया कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो दवाइयां भी इतनी अच्छी देती है और वो भी अफोर्डेबल, सस्ते दामों में। और मेरे ख्याल से और कोई देश है ही नहीं जो इस तरह से दे सकता है मेडिसिन सस्ती। भैया सस्ती मेडिसिन तो यूएसए में भी आती है, मेड इन इंडिया। तो भाई ये तो भैया ऐसा लगता है अफ्रीकन्स भी जो हैं वो भी इंप्रेस्ड है मेड इन इंडिया से। और अगर उनको चॉइस मिले मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना में से, वो मेड इन इंडिया ही चूज करते हैं। राइट, देखिए चक्कर ये है कि अगर वो कोई भी इंडियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, अफोर्डेबल है और वो चलता भी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया ने बनाया है अपनी कंजम्पशन के लिए। हम जो भी चीज़ बना रहे हैं अपने लोगों के लिए बना रहे हैं, उसी को एक्सपोर्ट करते हैं, खुद भी यूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो वो चीज़ बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हमें इंडियन मार्केट में कम्पीट करना है। अगर इंडियन मार्केट में ही खड़े नहीं हो सकते तो बाहर क्या बेचेंगे? वही माल आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए अच्छी क्वालिटी का होता है। वो एग्जांपल दिया था मोटर बाइक का। जो आप बाइक्स ले रहे हैं, बाइक्स इंडियन कंजम्पशन के लिए आ रही हैं, अच्छी क्वालिटी हैं, बाहर भी बेचते हैं, वही चीज़ को बहुत अच्छी चलती है। चाइना का वही पॉइंट है, अगर तो कोई रिप्यूटेड कंपनी है वो बनवा रही है तो सब सही है, मगर अगर वो लोग खुद बना रहे हैं कि अफोर्डेबल आपको बना के देते हैं, वो सब फेक है, सब गड़बड़ है, चलता नहीं है। मेडिकेशंस में तो यस, मोस्ट लाइकली अफ्रीका में जितनी मेडिकेशन आती है मेड इन इंडिया ही होती है, और उन्होंने देखा इट इज़ वेरी गुड। बीच में एक आध केस हुआ था इंडिया का जहाँ पे इंडिया की घपले हुए थे कोई सिरप से और आई ड्रॉप से, वहाँ पर भी बड़ी अब कार्रवाई की है मोदी जी ने और सब पकड़े गए हैं जो गड़बड़ी करे थे। अदरवाइज इट इज़ ब्यूटीफुल। हर जगह यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं मेडिकेशन मेड इंडिया लिखा होता है बहुत सारी मेडिकेशंस में। और चीज़ों में यस, सबको पता है कि अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो इट्स ओके मेड इन चाइना, नॉन ब्रांडेड का घपला है। आप कई बार इंटरनेट में बड़ी सस्ती चीज़ें मिल रही होती हैं, यहाँ पे बड़े सारे चाइनीज़ रिटेलर्स भी आ गए हैं, वो बड़ी सस्ती सस्ती चीज़ें बेचते हैं और जब वो आती हैं टोटल पुअर क्वालिटी। तो ये फर्क तो पड़ता है, नो डाउट। बिल्कुल। तो चलो भाई, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।